Hello dear students, in this video I start beta function. So in previous video lecture I have taken examples of gamma function, right? Also I told what is the use of gamma function, right? So here also beta functions are used when there are some complicated integrations. So with the help of some suitable substitution we reduce given integration into beta function, and then with the help of suitable property we can solve given integration easily. Okay, so let us see the definition of beta function. Again here beta function is defined only for positive integers. Gamma function भी हम positive integers के लिए define करते हैं. Similarly here beta functions are also defined for positive integers m and n. Okay, so beta function of mn is denoted by, so see here is the notation of beta function, like beta then m comma n. So how we can read it? Beta function of mn. Okay, this is the beta function of mn. Okay, and it is defined as, so see beta of mn is also the integration having limit 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx. Okay, जैसे कि हमने gamma function में डिफाइन किया था, gamma function में लिमिट्स क्या थी इंटीग्रेशन की 0 to infinity, but in beta function limits are from 0 to 1. Similarly in gamma function एक एक्सपोनेंशियल टर्म प्रेजेंट होती है, लाइक e to the power minus x है ना, एक्सपोनेंशियल टर्म प्रेजेंट होती है हैविंग नेगेटिव पावर, and along with it there is power of this variable x है ना, x to the power n minus 1 dx. तो सिमिलरली here बीटा फंक्शन को हमने कैसे डिफाइन किया है? इंटीग्रेशन हैविंग लिमिट 0 to 1, और यहाँ पर हमने x और 1 minus x की पावर्स ली है. ओके, सो रिमेंबर दिस. ओके, एंड सपोज आपके पास एक इंटीग्रेशन प्रेजेंट है, लाइक इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x की पावर आपको दी हुई है और 1 minus x की भी पावर दी हुई है, मींस डेफिनेटली इट डिफाइंस बीटा फंक्शन, राइट? सो इस बीटा फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे? सो दिस इज द बीटा फंक्शन ऑफ, देखिए यहाँ पर x की पावर जब p रहेगी देन इट इज द बीटा फंक्शन ऑफ p plus 1. 1 minus x की पावर q दी हुई है, so this is the beta function of p plus 1 comma q plus 1. Likewise, you can find value of any integration like x to the power 5 into 1 minus x to the power 7 dx. So it defines beta function of, see power of x is 5, so this is beta of 6 comma यहाँ पर पावर कितनी है 7, so here we take 8. Okay, likewise also integration from 0 to 1, अगर x की पावर 3 है, 1 minus x की पावर अगर 4 है, तो ये फंक्शन क्या डिफाइन करेगा? बीटा ऑफ 3 plus 1 that is 4 comma 4 plus 1 that is 5. So this is the beta function of 4 comma 5. So in this in very simplest manner we can write given integration as a beta function. Okay, और बीटा फंक्शन को भी हम इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं. So let us see the properties of beta function. So first property of beta function is beta of mn is same as beta of nn. Beta of mn and beta of nn both are same. Okay, second property, second property is very important because in each and every example we are going to use second property. Okay, so let's see. Actually second property is nothing but the relation between beta and gamma function. तो देखिए यहाँ पर हमने beta of mn को कैसे एक्सप्रेस किया है? So this is equals to gamma of m into gamma of n upon gamma of m plus n. Okay, क्या है? beta of mn is gamma m into gamma n upon gamma of m plus n. देखिए MCQs वगैरह में भी आपको ये सब पूछा जा सकता है. Okay, so you can learn all the properties carefully. Okay, so with the help of these second properties, let's see. Here आपको ये इंटीग्रेशन क्या मिला है? बीटा ऑफ 4 comma 5. अगर मैंने यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई की, क्या है सेकंड प्रॉपर्टी? So बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू बीटा गामा m into gamma n, मतलब यहाँ पर आएगा
जाएगा gamma 4 into gamma 5 upon gamma of m plus n, that is 4 plus 5 is 9, right? बट आपने gamma की प्रॉपर्टीज देखी है, अगर n इंटीजर है, अगर n इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं? gamma of n कैन बी रिटन एज n minus 1 फैक्टोरियल, है ना? तो उस प्रॉपर्टी का यूज अगर हमने यहाँ पर किया तो gamma 4 रहेगा 3 फैक्टोरियल इंटू gamma 5 रहेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन gamma 9 क्या रहेगा 8 फैक्टोरियल। और हमें मालूम है कि 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है ना? तो इन दिस वे with the help of properties of beta function we can evaluate such a complicated integrations. Okay, now next property of beta function, जैसे कि हमने देखा है कि बीटा की डेफिनेशन में देखिए इंटीग्रेशंस की लिमिट्स आपके पास क्या है? इंटीग्रेशंस फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ पर हमने बीटा फंक्शन को 3 इंटीग्रेशंस के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, ठीक है? तो देखिए फर्स्टली हमने क्या किया है? बीटा ऑफ एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। सेकेंडली यहाँ पर लिया है बीटा एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इंफिनिटी, ठीक है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इंफिनिटी एक्स टू द पावर m minus 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx। मतलब अगर आपके पास ये वाला इंटीग्रेशन प्रेजेंट है सो इट रिप्रेजेंट बीटा ऑफ एम एन। और अभी अभी हमने देखा है कि बीटा एम एन की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं? बीटा ऑफ एम एन इज गैमा एम इंटू गैमा एन अपॉन गैमा ऑफ एम प्लस एन। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है जिसमें हमने बीटा फंक्शन को ही इंटीग्रेशन हैविंग लिमिट 0 to π/2 में एक्सप्रेस किया है, बट वहां पर 2 टाइम्स 0 to π/2 किया है। तो आपको ये 3 प्रॉपर्टीज अच्छे से ध्यान में रखनी है। ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, सेकेंड इसमें हमने इंटीग्रेशन को 0 to इंफिनिटी में कन्वर्ट किया है, एंड इन थर्ड वन वी कन्वर्टेड बीटा फंक्शन इनटू 0 to π/2। सो सी फोर्थ प्रॉपर्टी, so this third property, fourth property, all properties are important. Okay, so beta of mn can be expressed as 2 times 0 to π/2 sin raised to twice n minus 1x cos raised to twice n minus 1x dx। okay, देन फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी गैमा फंक्शन में बताई हुई है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन रेज टू p इंटू कॉस रेज टू क्यू को हम लेते हैं गैमा p प्लस 1/2 इंटू गैमा q प्लस 1/2 अपॉन 2 टाइम्स गैमा ऑफ p प्लस q प्लस 2/2, राइट। और ऑल्सो गैमा 1/2 की वैल्यू होती है √π और गैमा 1 की वैल्यू होती है 1। ओके, सो यू हैव टू लर्न ऑल द प्रॉपर्टीज और कंपैरिजन से स्टडी करना है। जैसे कि हमने बीटा फंक्शन में डेफिनेशन में लिमिट्स क्या ली है इंटीग्रेशन के 0 to 1, जो एक प्रॉपर्टी ली है उसमें हमने 0 to इंफिनिटी लिमिट्स ली है, एक और प्रॉपर्टी ली है उसमें हमने 2 टाइम्स 0 to π/2 में बीटा फंक्शन को एक्सप्रेस किया है। ओके, तो अच्छे से आपको प्रॉपर्टीज लर्न करनी है और उन्हें अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ओके, सो विद दिस आई टेक फर्स्ट एग्जांपल ऑफ बीटा फंक्शन। So see this example, show that integration from 0 to π/2 sin raised to px dx into integration from 0 to π/2 sin raised to p plus 1 x dx की वैल्यू क्या शो करनी है? π/2 टाइम्स p plus 1। तो यहाँ पर हमें 2 सेपरेट इंटीग्रेशन दिए हुए हैं। दिस इज वन इंटीग्रेशन एंड दिस इज अनदर इंटीग्रेशन। ओके, so first of all we consider its left hand side। तो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 दिस साइड साइन रेज टू px dx इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन रेज टू पावर p प्लस 1x dx। ओके, अब केयरफुली हम देखते हैं यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, वी हैव फिफ्थ प्रॉपर्टी, है ना। क्या है फिफ्थ प्रॉपर्टी? लिमिट्स क्या है 0 to π/2 साइन रेज टू p इंटू कॉस रेज टू qx dx की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पर तो कॉस की टर्म है ही नहीं, है ना। बट हम कॉस की टर्म ले सकते हैं बिकॉज वी नो एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ साइन रेज टू px है, तो साइन रेज टू px को हम 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते
फर्क नहीं गिरेगा. Similarly here we take sin raised to power p plus 1x into cos raised to power 0x. Okay, so see the next step. So LHS can be written as integration from 0 to pi by 2 sin raised to px into cos raised to 0x dx. Okay, क्योंकि cos raised to 0 होता है 1 into integration from 0 to pi by 2 sin raised to p plus 1x into cos raised to 0x dx. सिर्फ हमने क्या की है यहाँ पर cos raised to 0x की एडजस्टमेंट की हुई है. क्यों एडजस्टमेंट की? बिकॉज वी हैव दिस प्रॉपर्टी. ओके, नाउ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी we can write once again see the property. So value of this integration is gamma of p plus 1 by 2 into gamma of q plus 1 by 2 upon 2 times gamma p plus q plus 2 by 2. So देखिए, अगर मेरे फर्स्ट इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है, so gamma of p plus 1 by 2 into gamma of q plus 1 by 2, but q की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0. 0 plus 1 by 2 upon 2 times gamma of p plus q, that means 0 plus 2 upon 2. Okay, into अब सेकेंड इंटीग्रेशन में देखिए हमें मिलेगा gamma of this power plus 1, that is p plus 1 तो ऑलरेडी है तो उसमें हम 1 ऐड करेंगे upon 2 into gamma of q plus 1 by 2 upon 2 times आएगा gamma of this power plus 2 by 2. ओके, अब सिर्फ इन टर्म्स को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. सो इक्वल्स टू gamma of p plus 1 by 2 into यहाँ पर आएगा gamma 1 by 2, बट gamma 1 by 2 क्या होता है? रूट पाई. तो नेक्स्ट स्टेप में हम उसे रूट पाई से रिप्लेस करेंगे into sorry upon 2 times p plus 2 by 2 into gamma of यहाँ पर मिलेगा p plus 2 upon 2 into gamma 1 by 2 upon 2 times gamma of यहाँ पर मिलेगा p plus 3 by 2. ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर कुछ कैंसिल होता है तो हम कैंसिल करेंगे. तो gamma p plus 2 by 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट. अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? gamma 1 by 2 को पाई से रिप्लेस करेंगे. क्या रिप्लेस करेंगे? पाई से रिप्लेस करेंगे. ओके, और ऑल्सो हियर वी मेक सम एडजस्टमेंट बिकॉज वी नो अगर n इंटीजर नहीं है, अगर आपका n इंटीजर नहीं है तो इन दैट केस हमने gamma n को क्या लिया था? gamma n को ही आप लिख सकते हैं n minus 1 gamma n minus 1, right? Now we can use this property and we write the value of gamma p plus 3 upon 2. Now see, so our LHS becomes यहाँ पर क्या बचेगा? gamma p plus 1 by 2 into gamma 1 by 2 की वैल्यू होती है रूट पाई. ठीक है, अब इन दोनों न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं. तो यहाँ पर तो सिर्फ न्यूमरेटर में क्या बचा है? gamma 1 by 2, और फिर से gamma 1 by 2 को आप क्या कर सकते हैं? रूट पाई ले सकते हैं, राइट. अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर्स में क्या बचा है? 2 into 2 is 4 into gamma of p plus 3 upon 2. Now with the help of this property we can find value of gamma of p plus 3 by 2, है ना. अगर मैंने n को p plus 3 by 2 से रिप्लेस किया तो gamma p plus 3 by 2 की वैल्यू आएगी p plus 3 by 2 minus 1 into gamma of, फिर से मैंने n को इस वैल्यू से रिप्लेस किया तो p plus 3 by 2 minus 1. Okay, so we can use this property for this denominator. Okay, so let's see. So LHS becomes so यहाँ पर रूट पाई इंटू रूट पाई बनेगा पाई इंटू gamma of p plus 1 by 2 अपॉन
4 टाइम्स। हाँ, अब इस डिनोमिनेटर को हम रिप्लेस करेंगे, तो वी रिप्लेस दिस विथ दिस वैल्यू। ओके, सो p plus 3/2 minus 1 into gamma of p plus 3/2 minus 1. Okay, so you may give a reason since gamma n क्या होता है n minus 1 gamma n minus 1। तो देखिए बीटा में भी आपको gamma की प्रॉपर्टी यूज करनी है। ओके, now equals to pi into gamma p plus 1/2 upon 4 टाइम्स है। यहाँ पर अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या बचेगा, p plus 3 minus 2, p plus 3 minus 2 upon 2, और p plus 3 minus 2 कितना आएगा, p plus 1/2। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको वैल्यू मिलेगी p plus 1/2। ओके, सो हियर आई कैन राइट p plus 1/2 into gamma p plus 1/2। अब अगली स्टेप में वेरी सिंपल, p plus 1/2 गेट कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा, पाई अपॉन p इंटू फोर इंटू p plus 1/2। और अगर इस p plus 1/2 को मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो आपको मिलेगा उसका रेसिप्रोकल, है ना, मतलब 2 अपॉन p plus 1। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, पाई अपॉन 2 इंटू p plus 1। Okay, so this is our LHS, and if you can observe required right hand side and here right hand side of 10 दोनों भी सेम है ना, so it is equals to RHS, therefore LHS is equals to RHS। Okay, so in this way we can apply suitable property। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin raised to p into cos raised to q वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। बट cos थीटा नहीं थी तो हमने कैसे एडजस्ट किया, cos raised to 0x से रिप्लेस किया, बिकॉज cos raised to 0x क्या होता है, 1 होता है। ओके, नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, नाउ सी, और यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने हिंट भी यहाँ पर प्रोवाइड की है। ओके, सो हिंट है कि पुट x इक्वल्स टू 1/t। यहाँ पर हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू 1/t पुटअप करना है। बट सी, हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिनोट गिवन इंटीग्रेशन बाय i। क्या किया हमने, गिवन इंटीग्रेशन को सबसे पहले i से डिनोट किया। आफ्टरवर्ड्स वी सेपरेट डिनोमिनेटर। अगर हमने डिनोमिनेटर सेपरेट किए तो क्या मिलेगा, x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n प्लस x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। राइट, बाद में हमने क्या किया, सिर्फ इंटीग्रेशंस को सेपरेट किया। ओके, सो यही इंटीग्रेशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x to the power n minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx। दिस इज वन इंटीग्रेशन। प्लस अब सेकेंड इंटीग्रेशन आएगा x to the power n minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx। ओके, अब हमने फर्स्ट इंटीग्रेशन को I1 डिनोट किया, सेकेंड इंटीग्रेशन को I2 डिनोट किया। ओके, हाँ, बट आई थिंक क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, है ना। सो वी आर गोइंग टू शो दैट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज बीटा ऑफ mn। हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या शो करनी है, बीटा ऑफ mn। ओके, नाउ सी, यहाँ पर तो हमें दो इंटीग्रेशन दिए हैं, है ना, बट वी नो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। सो लेट्स सी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन है, सो बीटा ऑफ mn को ही आप जैसे कि डेफिनेशन है ना, तीन इंटीग्रेशंस में एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट हैविंग लिमिट 0 to 1, सेकेंड हैविंग लिमिट 0 to इंफिनिटी, और थर्ड में लिमिट्स होते हैं 0 to π/2, है ना। जैसे कि डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 dx, जो कि सेकेंड फॉर्म है बीटा mn इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इंफिनिटी x to the power m minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx। हाँ,
तो अगर आपने ये इंटीग्रल्स की टर्म ऑब्जर्व की, तो सी यहाँ पर x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस 1 की टर्म प्रेजेंट है, राइट, टर्म प्रेजेंट है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोस टू टर्म्स? यहाँ पर लिमिट क्या होता है, 0 टू इंफिनिटी होता है, बट यहाँ पर लिमिट क्या है गिवन, 0 टू 1, है ना। ऑल्सो वी नो वन मोर थिंग, बीटा ऑफ mn इज इक्वल टू बीटा ऑफ n कॉमा m, ओके। मतलब आप इसी इंटीग्रेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बीटा ऑफ mn को आप 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx भी लिख सकते हैं, राइट। बट सी यहाँ पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लिमिट्स डिफरेंट है ना। तो अगर हमने 0 टू इंफिनिटी लेने की कोशिश की तो 0 टू इंफिनिटी कैन बी रिटन एज 0 टू 1, है ना। तो देखिए अगर मुझे ये वाला इंटीग्रेशन एक्सप्रेस करना है तो सी, अगर मैंने 0 टू इंफिनिटी लिमिट को दो इंटरवल्स में, सब इंटरवल्स में डिवाइड किया, लाइक 0 टू 1 एंड 1 टू इंफिनिटी, तो भी चल सकता है। मतलब हम इसी इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx, सॉरी 0 टू 1, 0 टू, है ना, फर्स्ट सब इंटरवल क्या ले रहे हैं हम, 0 टू 1 ऑफ गिवन इंटीग्रैंड प्लस 1 टू इंफिनिटी ऑफ सेम इंटीग्रैंड, दैट इज एक्स टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx, है ना। लेकिन हमारे पास तो 0 टू 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, मतलब ये वाली टर्म तो अवेलेबल है, बट ये वाली टर्म अवेलेबल है क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस टर्म इज नॉट अवेलेबल। मतलब अगर हमने सेकेंड इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस किया, देन इजीली वी कैन कंबाइन दीज टू इंटीग्रेशंस, है ना। ये दोनों इंटीग्रेशंस कंबाइन होने के बाद आपको इजीली ये वाला इंटीग्रेशन मिल सकता है, एंड दिस इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट बीटा ऑफ mn, और वही तो हमें शो करना है कि वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज बीटा ऑफ mn। तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में आया होगा कि हमें एक सब्स्टिट्यूशन करनी है, जो कि मैंने हिंट में प्रोवाइड की है, बट वी यूज दैट सब्स्टिट्यूशन ओनली इन सेकेंड इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें सिर्फ कौन सा इंटीग्रेशन चेंज करना है, सेकेंड इंटीग्रेशन चेंज करना है, ओके। सो दैट्स व्हाई हियर आई कंसीडर दिस सेकेंड इंटीग्रेशन, और अभी हमने सेकेंड इंटीग्रेशन को क्या डिनोट किया, I2 से डिनोट किया, ओके। सो वी कंसीडर I2, है ना। तो क्या है I2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस n, ओके। और अब ये जो हिंट दी हुई है मैंने, वो हिंट यहाँ पर यूज करनी, बट व्हाई वी यूज दैट हिंट, है ना। अगर हमने हिंट दी, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ लर्न करना है, बिल्कुल नहीं करना है लर्न, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमें लिमिट्स क्या चाहिए, 1 टू इंफिनिटी चाहिए, तो मैंने अगर इस 1 का रेसिप्रोकल लिया तो इजीली 1 मिलेगा, बट अगर मैंने 0 का रेसिप्रोकल लिया, लाइक 1 अपॉन 0, है ना। रेसिप्रोकल मतलब क्या, जैसे कि आप a का रेसिप्रोकल क्या लेते हैं, 1 बाय a, सिमिलरली 0 का रेसिप्रोकल आएगा 1 बाय 0, बट 1 बाय 0 क्या होता है, इंफिनिटी। तो हमें एक बात ध्यान में आई है कि हमें डेफिनेटली x को क्या रिप्लेस करना है, 1 अपॉन सम वेरिएबल, like 1 upon t. That's why here we use the substitution x equals to 1 by t. Okay, so we put x equals to 1 by t. फिर से यूजुअल प्रोसेस से हम क्या करेंगे, dx फाइंड करेंगे, तो 1 by t का डेरिवेटिव आता है माइनस 1 by t स्क्वायर dt, है ना। देन नेक्स्ट न्यू लिमिट्स फाइंड करने होंगे, so when x equals to 0, है ना, when x equals to 0, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं x equals to 1 by t, मतलब t equals to, t की वैल्यू क्या आएगी, 1 by x, है ना। now when x equals to 0, लोअर लिमिट फाइंड करेंगे पहले, so when x equals to 0, t की वैल्यू क्या आएगी,
टी की वैल्यू आएगी 1/0 एंड 1/0 होता है इंफिनिटी। दैट ऑफ व्हेन x इक्वल्स टू अपर लिमिट क्या है यहाँ पर 1, सो व्हेन x इक्वल्स टू 1 टी आएगा 1/1 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो हमें न्यू लिमिट्स क्या मिले हैं, लोअर लिमिट मिला है इंफिनिटी, अपर लिमिट मिला है 1, बट हम इंफिनिटी टू 1 को इजीली 1 टू इंफिनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय माइनस साइन। ओके, नाउ सी, नाउ अपना इंटीग्रेशन आएगा, सो I2 इक्वल्स टू न्यू लिमिट्स क्या मिले हमें, इंफिनिटी टू 1 है ना, देन x को हम रिप्लेस करेंगे 1/t से, सो 1/t टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x मतलब 1 प्लस 1/t टू द पावर n प्लस n इंटू dx, dx की वैल्यू क्या है माइनस 1/t² dt। ओके, अब इस माइनस साइन को हम बाहर निकालते हैं, सो I2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंफिनिटी टू 1, हाँ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, t की पावर्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है, सो 1 रेज टू n माइनस 1 आएगा 1 अपॉन t रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद t प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर n प्लस n, और यहाँ पर निगेटिव साइन बाहर गई है, सो 1 अपॉन t² एंड देन dt। ओके, विच इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस साइन देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया है कि 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इज सेम एज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू 1, तो यहाँ पर माइनस ऑफ इंफिनिटी टू 1 को ही आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ओके, तो 1 टू इंफिनिटी, अब यहाँ पर t की पावर सेपरेट करते हैं, सो 1 अपॉन, हाँ इस t को हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, राइट, सो देखिए यहाँ पर सिर्फ अब हमें t की पावर्स कलेक्ट करनी है, दूसरा कुछ भी नहीं, तो इस टर्म को हमने डिनोमिनेटर में लिखा, ठीक है, यहाँ पर अब पावर सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा t प्लस 1 टू द पावर n प्लस n अपॉन t टू द पावर n प्लस n 1/t² इंटू dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन, हाँ अब इस t टू द पावर m प्लस n को आप न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं बिकॉज रेसिप्रोकल है ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा t टू द पावर m प्लस n, और t टू द पावर m प्लस n को ही आप लिख सकते हैं t रेज टू m इंटू t रेज टू n, राइट, तो यहाँ पर हम लेंगे t रेज टू पावर m इंटू t रेज टू पावर n अपॉन, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा t रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू t² अगर करते हैं, है ना, t टू द पावर n माइनस 1 इंटू t² करते हैं तो क्या होगा, पावर्स की एडिशन होगी, तो t टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 कितना आएगा, t टू द पावर n प्लस 1 है ना, इंटू यहाँ पर आएगा t प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस n एंड देन dt, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, t रेज टू n गेट कैंसल है ना, एक t रेज टू n क्या होगा, कैंसल होगा, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी t रेज टू m इंटू यहाँ पर सिर्फ t बचेगा है ना, क्योंकि एक t रेज टू n क्या होगा, कैंसल, या तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं t रेज टू n अपॉन t रेज टू n प्लस 1 को ही आप लिख सकते हैं t रेज टू n इंटू t रेज टू पावर 1 इंटू t प्लस 1 टू द पावर n प्लस n एंड देन dt। ओके, अब क्या होगा, t रेज टू n गेट कैंसल, अब जो अपॉन में t टू द पावर 1 है उसे अगर मैंने फिर से न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो ये t रेज टू 1 क्या बन जाएगा, t रेज टू पावर माइनस 1 है ना, और t रेज टू m और t रेज टू माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन आएगा t रेज टू पावर m माइनस 1। ओके, तो वही चीज हम अगले स्टेप में करेंगे। सो दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी t रेज टू पावर m, और ये वाला यहाँ का जो 1 पावर है
वो ऊपर अगर शिफ्ट करते हैं तो t रेज़ टू पावर m माइनस 1 अपॉन यहाँ पर आएगा t प्लस 1 को ही आप 1 प्लस टी भी लिखते हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 प्लस टी टू द पावर m प्लस n dt। बट मैंने ऑलरेडी आपको एक चीज बताई है, अगर आपके पास प्रॉपर इंटीग्रल है, प्रॉपर इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन हैविंग लिमिट्स, सो इफ यू हैव प्रॉपर इंटीग्रल देन वेरिएबल्स आर इमटेरियल, है ना। वेरिएबल्स आर इमटेरियल मीन्स यू मे चेंज वेरिएबल्स, जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल आप कौन सा प्रेजेंट है टी को आपने x से भी रिप्लेस किया, y से भी रिप्लेस किया, तो भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, सो वी कैन चेंज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। तो जैसे कि हमारा एम क्या था, फर्स्ट इंटीग्रेशन में तो कुछ इश्यू नहीं था, हमें सिर्फ सेकेंड इंटीग्रेशन में लिमिट चेंज करने थे, है ना। तो यहाँ पर अगर वेरिएबल x है तो डेफिनेटली दूसरे इंटीग्रल में भी क्या चाहिए, x ही प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप t को ही x से भी रिप्लेस करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं गिरेगा। ओके, so this same integration can be written as this integration can be written as so I2 equals to integration from 1 to infinity। अब मैं क्या कर रही हूँ, x को सॉरी t को x से रिप्लेस करने वाली हूँ। ओके, so here I replace t by x, okay, because variables are immutable। तो देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। आई डिनोटेड इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इस I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करनी है। ओके, सो पुट वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो I की वैल्यू आएगी I1 क्या है अपना, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx प्लस I2 की वैल्यू क्या मिली है हमें, 1 टू इंफिनिटी, अगर और इंटीग्रल है अपना x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये दोनों भी इंटीग्रल सेम है ना। अगर इंटीग्रल सेम है तो आप इन दोनों लिमिट्स को कंबाइन कर सकते हैं, राइट। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एक नोट बताई है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f of x प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to infinity f of x इज इक्वल्स टू, है ना। अगर इंटीग्रल सेम है और लिमिट भी कंटिन्यूएशन में है, लाइक 0 to 1 1 to infinity, तो आप इसी को अगर कंबाइन करते हैं तो आपको मिलेगा 0 to infinity of f of x। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट, तो ये इंटीग्रल तो सेम रहेगा बट 0 to 1 प्लस 1 to infinity आएगा 0 to infinity। ओके, एंड हेंस it represents single integration having limit 0 to infinity। इंटीग्रल तो सेम है, that is x to the power m minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, है ना। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity ऑफ दिस इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट बीटा ऑफ mn, जो कि मैंने आपको प्रॉपर्टी लिख के दी है ना। सो अपने I की वैल्यू क्या मिली है आपको, बीटा ऑफ mn, और यही तो अपना एम था, है ना। Hence proof. So in this way we can solve examples of beta and gamma function। Okay, so with this I stop my lecture. Thank you very much.